डे बाय डे वो कॉन्फिडेंस मेरे में वापस आया, कमिंग आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। बिलीव हम लोग ने ऐसे भी मैचेस खेले जहाँ पे हम लोग 5 मिनट भी ब्रेक नहीं लिया, 80 ओवर्स नॉन स्टॉप हम लोग फील्डिंग किए। आई मीन द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम जून, व्हेन आई स्टार्टेड विद द ऑफ सीजन कैम्प। आई थिंक I did not believe in myself that much, but the coach and the team management, the way they prepared me from June, because I was nowhere before that. I was not playing, my motivation was down. I wasn't sure if I'll make it into the probables also, but then I had a chat with my coach and he's like, if you work on your fitness, if you work on little bit of skills, mentally we know you're strong, you have everything in you, but it starts from there. And now, yes, obviously I'm satisfied, but I think I'm only thankful to the team management, the selectors, for believing in me, giving me opportunity to prove myself once again, and it's satisfying for sure. But Siddesh, what did you do exactly? Like how you said the mental preparations and the hard work that went behind. What exactly did you do? Something different from coming back in the Mumbai side? It's challenging. I mean, you have to compete with a lot of other youngsters. Did you do something different from Obviously, your regular stuff? It was a champion team last year. Mumbai had won, and last 2 years I didn't play any cricket. Like 2 years back, I played first class cricket. Then I had a surgery. My motivation was down. But I think surgery for what? Like sports hernia surgery. Okay. So 3-4 months, I wasn't playing. But I think we had a 2 weeks camp in Allur, and Umi sir, he made me come out of my comfort zone. We used to train from 6:20 in the morning till 6:20 in the evening. So 15 days was coming out of that comfort zone. The belief grew in me once again that I can play for Mumbai. And then I had a good KSEA tournament. Bucci Babu was all right. So these all things made me come back once again. Siddesh, when you about to came to Mumbai, I mean you left Goa and then you came here, it's a tedious process to wait around. Yeah. तो कभी ऐसा लगा कि पता नहीं होगा नहीं होगा कहाँ जाने वाला है? नहीं, एग्जैक्टली वही मैं फ्रैंकली बताऊँ तो गोवा के बाद मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं वापस फर्स्ट क्लास खेल पाऊँगा, क्योंकि मोटिवेशन भी आई वाज ऑल 30, थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो गया था मेरा। फिर मुंबई टीम में कम बैक करना मुझे ऐसा लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेट थे, बैट्समैन लोग सेट है, सब स्टार प्लेयर फिर से अपॉर्चुनिटी, मतलब उन लोग भी कोई इंडियन टीम में है नहीं, तो वो बिलीव आना बहुत टाइम लिया। वो बिलीव आने में वही मैं बोल रहा था कि मई एंड तक इतना बिलीव था नहीं, बट जून जुलाई अगस्त जो ऑफ सीजन कैम्प मैंने किया, आई वर्क रियली हार्ड विद द सपोर्ट स्टाफ, और उसके बाद एक वो बिलीव आया, डे बाय डे वो कॉन्फिडेंस मेरे में वापस आया, और मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मैं अच्छा करने वाला हूँ, क्योंकि प्रिपरेशन वाइज सब मैंने कर लिया था। Were you into yoga or something different personally? कि मतलब because a lot of people do different stuff, and going by the social media, you get a lot of tutorial stuff online and all. So did you do something different when it comes to sporting? Improving your mental aspect, physical aspect. No, I think we were doing little bit of yoga. Personally, I didn't really do that. I worked on my fitness. सो दैट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी, क्योंकि क्या होता है कि 30 के बाद थोड़ा बॉडी स्लो हो जाता है, और आपका फिटनेस लेवल पे आप वर्क नहीं कर रहे हो, तो वो बॉडी जो रिफ्लेक्सेस होता है या रिएक्शन होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो मुझे लग रहा है उस चीज़ पे काम करने के बाद मैं थोड़ा अंदर से भी अलग फील करने लगा बैटिंग में, और वो आई थिंक एक थोड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, कि कोच ने भी मेरे को थोड़ा बोला कि नहीं 30 हो गया है। फिर डे बाय डे मेरा स्केड्यूल उन्होंने कस्टमाइज और पर्सनलाइज किया था कि तेरे को ये करना है, और ऑब्वियसली मेरे ट्रेनर और मेरे फिजियो हमें हर दिन पे वो मॉनिटर कर रहे थे। तो आई थिंक ओवरऑल जब मैं मुंबई टीम में वापस आया तो गोवा टीम के लिए भी खेला, बट एक प्रोफेशनल सेटअप आया है मुंबई में, बहुत अच्छा लगा वो देख के कि हर एक जन पे वो अलग से ध्यान दे रहे कि
हर एक को किस चीज़ पे वर्क करना है वो बताया गया है, तो वो एक क्लियर माइंडसेट के साथ हम खेल रहे हैं। So at what point did you actually think for the first time that yes, I can again do all of it all over again? सी आई थिंक सबसे पहले तो वो जो 15 डे का मैं KSCA कैंप था, 12-12 घंटा हम लोग फील्डिंग प्रैक्टिस, हम लोग ने ऐसे भी मैचेस खेले जहाँ पे हम लोग 5 मिनट भी ब्रेक नहीं लिए, 80 ओवर्स नॉन स्टॉप हम लोग फील्डिंग किए। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, और ख़ास करके 2 साल में कुछ कर ही नहीं रहा था, घर पे बैठा था, और उसके बाद आके ये 2 हफ्ते का तो अचानक से वो शॉक लगा था मेरे को, यू नो, एक कंफर्ट जोन से बाहर ही निकाल दिया था। और उसके बाद थोड़ा आदत भी हो गया उस चीज़ का, और स्लोली आई थिंक फिर टूर्नामेंट्स खेला मैं KSCA, और फिर मेरे को थोड़ा वो डिफरेंस पता चला कि नहीं अभी मैं वापस आ रहा हूँ वो जोन में। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यू नो इट्स नॉट ईजी अगेन फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना, कॉम्पिटिटिव है। तो मुझे लगा कि KSCA टूर्नामेंट जब खेला तभी मैं थोड़ा अच्छे माइंड से खेला। In that sense, how important is this 100? क्योंकि वो अलग कॉन्फिडेंस है, बिकॉज आई थिंक श्रेयस अपने स्ट्रोक्स खेल रहा था, यू आर प्लेइंग योर ओन गेम इन अ लॉन्ग पार्टनरशिप। आई थिंक मेरा रोल थोड़ा क्लियर है टीम में, क्योंकि मैं थोड़ा क्योंकि हमारे पास इतने अटैकिंग प्लेयर्स हैं, आप स्टार्ट से देखें तो आयुष अटैकिंग है, अंकुरिश अटैकिंग है, श्रेयस है, तो मेरा और अज्जू का थोड़ा ऐसा रोल है कि यू नो एक साइड से एंकर करते रहे हम लोग, और सामने से जब रन्स आते थे तो थोड़ा एक बोलते हैं ना, एज अ सीनियर प्लेयर मेरा वही रोल था कि सिंगल जितना मैं श्रेयस को स्ट्राइक दे सकूँ वही मैं थोड़ा मैच्योर्ड इनिंग्स खेलने देगा। So what, I mean, when you picked up from where you had left back, attained a certain level of fitness and form. Now, coming into the season, were there any set targets in terms of number of runs you wanted to achieve, or in terms of what you? I think frankly, you know, right now I'm just trying to enjoy my cricket, क्योंकि मैं वही स्टार्ट ऑफ द सीजन से वही सोच रहा था कि वाई आई यूज टू प्ले क्रिकेट बिकॉज आई एन्जॉय इट, और फिर वो ज़्यादा प्रेशर लेके यू नो मैं उतना एन्जॉय कर नहीं रहा था, बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था खुद से। बट अभी मेरा एक वो ये जितना मैं खेल रहा हूँ मैं एंजॉय करूँगा, और जितना टीम को कंट्रीब्यूट कर सकूँ विनिंग में, वही मेरा कोशिश है। बाकी मैं फिलहाल देयर आर नो गोल्स राइट नाउ इन फ्रंट। Siddesh, when you look back, how do you see that decision to leave Mumbai and play for Goa? I think it was a tough decision for me, but you know, before COVID I played for India A, and then suddenly I didn't have a good one season after so many years. So और मेरा बहुत ज़रूरी था वो टाइम पे खेलना, क्योंकि 29-30 था मैं 30, और अगर मतलब मेरे को तभी अपॉर्चुनिटीज़ थोड़े कम मिल रहे थे तभी, तो मैं बोला अगर मैं कंसिस्टेंटली नहीं खेलूँ तो मेरा इवेंचुअली जो गोल है इंडिया खेलने का तो वो रीच करना भी डिफ़िकल्ट था। तो समवेयर आई वाज लुकिंग कि मैं पूरा सीज़न खेल सकूँ, इसीलिए दैट वाज द ओनली मूव कि मैं कहीं जाके मैं पूरा सीज़न खेल सकूँ। So what is your goal now, right now? What is your goal? What is Siddesh Lad is looking at in the future? you're getting older. जैसे मैंने बोला फिलहाल गोल यही है कि मुंबई को वापस रणजी ट्रॉफी जीताऊँ, तभी जाके मैं सेटिस्फाइड होऊंगा कि एक और विनिंग टीम में मैं हिस्सा बनूंगा। और यू नो हिस्ट्री है, बच्चे लोग को बोलूँगा कि मुंबई के साथ 2-3 सीज़न जीता, तो वही है फिलहाल के लिए ज़्यादा मैं सोचने। और फ्रेंड्स भी थे मेरे आजू बाजू जो मेरे खास दोस्त थे, वो बोल रहे थे यार तू डिज़र्व करते अभी तक खेलना, और तू घर पे बैठा है तो कुछ कर नहीं रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था, वाइफ का मोटिवेशन था कि तू खेल, मतलब यू नो जो होगा वो देखा जाएगा, तू खेल, तू मेहनत करेगा तो वापस यू नो एक बिलीव है कि तू आ सकता है। Siddesh, you have seen Shreyas also for a long time, and you know he's gone through a lot this year, and then to see him score runs, how does it feel from the other end? You shared such a long partnership with him. No, it feels amazing. You know, Shreyas is back in form, and we expect a lot from him. जो talent दिखता ही है उसका कि क्या है, बट टीम के लिए भी अच्छा है, उसके खुद के लिए भी अच्छा है कि वापस एक बार डोर नॉक कर रहा है वो इंडियन टीम का। और जो सिचुएशन है, मुझे लगता है श्रेयस अगर न्यूजीलैंड में भी रहता तो यू नो उसका जो टर्न स्पिन के अगेंस्ट जो गेम है, आई थिंक इट वुड हैव मेड अ डिफरेंस, बट ऑब्वियसली थोड़ा आगे पीछे हुआ। बट आई एम श्योर कि अगर ऐसे ही करता रहेगा तो देयर आर सिलेक्टर्स लुकिंग। And going ahead in this match, going ahead in this match, ये पिच कैसा बिहेव करेगा आपके दिनों में, आपको क्या लगता है? आई थिंक इनिशियली हम लोग ने थोड़ा घास रखा था विकेट पे कि यू नो थोड़ा शार्दुल्ला एक्सपीरियंस सीमर्स है हमारे पास, तो फर्स्ट डे पे था, हेल्प था। अभी भी बाउंस है विकेट पे,
बट आई एम हैप्पी कि अभी थोड़ा टर्न होना चालू किया है। तो ये विकेट पे कैसे अगर टर्न होता है बाउंस के साथ तो विकेट मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। नॉर्मली स्लो रहते हैं विकेट्स, बट ये ऐसा विकेट है नहीं, बाउंस भी हो रहा है, निकल भी रहा है बहुत। तो आई थिंक अगर अच्छा टप्पे पे हम लोग डालें तो ब्राइट चांसेस है जीतने का। सर एक मोठे पार्टीचे होते